Students, today we are discuss about problem based on Coulomb's law. Okay, so first we discuss some important points to solve problem. Since we know that if 2-point rest charges placed in free space by some distance, then they are experience a force called electrostatic force, and magnitude of electrostatic force is to be calculated by this formula. If both charges having same sign as shown in the figure first and second, then they are repelled to each other by equal magnitude of forces, and magnitude of forces calculated by this formula. And if both charges having opposite sign as shown in the figure third, then they are attracted to each other by equal magnitude of forces as shown in the figure third. Direction of force in the sense of line joining both charges as shown in the figure means plus q1 charge repel to plus q2 charge in the sense of line joining both charges. Similarly, plus q2 charge repel to plus q1 charge by equal magnitude of force in the sense of line joining both charges. Similarly, in case of figure third, and in case of figure third, both charges attracted to each other by equal magnitude of forces and direction of forces in the sense of line joining both charges. Okay. तो इस पॉइंट को फोकस करना है कि जो डायरेक्शन होगा फोर्स का इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस. थोड़ा सा हम लोग वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं. सिंस वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स A and B exist at angle theta and resultant of sum of these two vectors is denoted by vector or, then magnitude of vector or is equal to or in root a square plus b square plus 2ab cos theta. If theta is equal to 90 degree. What is theta? Theta angle between vector A and vector B as shown in the figure. Means for this figure, vector A and vector B exist an angle 90 degree. Then magnitude of resultant is equal to in root a square plus b square, because of cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0. Similarly, since force is a vector quantity, therefore this concept also we apply for more than one forces occurs on a particle. Suppose two forces, say vector F1 and vector F2 occurs on a particle P by making an angle theta degree. If F net be the force, means resulting force occurs on these particle P, means if F net is the resulting force of F1 and F2 forces, then F net is equal to in root F1 का square plus F2 का square plus 2 F1 F2 cos theta, where theta angle between forces F1 and F2. Okay. If theta is equal to 90 degree, means if
F1 and F2 exist at angle theta 90 degree. F1 and F2 exist at angle 90 degree at particle point P, then F net is equal to, means magnitude of resulting of these two forces by this formula. F net is equal to F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इन रो, बिकॉज ऑफ cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0। और यदि हम लोग यहाँ पर ओरिजिन सपोज कर लें तो इसको x कंपोनेंट ऑफ फोर्स कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं y कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर इन रूट, मीन्स वेयर Fx क्या है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स occurs on the particle P and Fy क्या है y components of force occurs on the particle P and both are exist, means Fx and Fy exist at angle theta. Okay, if alpha be the angle of F net with horizontal components or x axis, then tan alpha is equal to y component of force upon x component of force. Okay, so by this formula we calculate angle of resulting force means F net. तो इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो अब हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पर आते हैं। हम लोग का एम क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। ओके, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इन टाइप ए में हम लोग पढ़ेंगे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ particular point charge by number of grouping charge, by number of grouping charge। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट। नेट को अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोलॉम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस बाई प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इन द फॉलोइंग configuration of charge system, charge system as shown in the figure, in the figure। ओके, जितने भी क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करेंगे सभी क्वेश्चन में प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन, उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। इस बात को फोकस कीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, वन टाइम्स क्वेश्चन लिखा गया है। जितने भी फिगर ड्रॉ करेंगे सभी क्वेश्चन में प्लस कैपिटल क्यू पर क्या डिटरमिन करना है,
फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रा करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर, there are an equilateral triangle of side A. This is equilateral triangle of side A, and at the three corners, one is plus capital Q charge and another is plus small q charge are placed as shown in the figure. Then what is the magnitude and direction of net electrostatic force expressed by plus capital Q charge as written in the question? Okay. Solution. Solution का फिगर हम लोग अलग ड्रा करेंगे। एक क्वेश्चन का फिगर है, यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल प्लस क्यू एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड कितना ए है। ओके, अब प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालना है, तो इसको छोड़ के यह बचा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे? इन द सेंस ऑफ लाइनिंग ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज। ओके, एंड दिस चार्ज आल्सो रिपेल टू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इन द सेंस ऑफ लाइनिंग ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज। क्लियर? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड पहले फर्स्ट लिख लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि इसको हम लोग Q1 कहेंगे तो Q2 होगा, मीन्स Q कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन ए का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ए है, इसके लिए भी डिस्टेंस कितना ए। ठीक है, फार्मूला हम लोग के पास क्या है, किस फार्मूले से लिखा? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 फर्स्ट एंड सेकेंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मीन जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं होगा, तब तक फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर चार्ज का कॉम्बिनेशन सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इसलिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा। ओके, अब इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर फोर्स का दो डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक नाइदर। यह वाला नाइदर हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। ओके, तो नेट फोर्स मीन्स आइदर डायरेक्शन मिलना चाहिए, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और एनी डायरेक्शन मिलना चाहिए। बट प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर दो फोर्सेस का डायरेक्शन है, तो हम लोग जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे, जो नाइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर इन वर्टिकल डायरेक्शन, उसी को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स लॉ। ओके, तो f की वैल्यू कितना था? f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a का स्क्वायर। ओके, इस फोर्स का a इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, तो ए भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर? ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, इसका कॉस कंपोनेंट लेफ्ट टू राइट आएगा और साइन कंपोनेंट किधर आएगा? डाउनवर्ड आएगा। ठीक, यहाँ पे एक फिगर और हम लोग बना लेते हैं। एफ ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 60 डिग्री और साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा एफ साइन 60 डिग्री। ओके, ये आपका प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है और ये 90 डिग्री का होगा। यदि वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ प्लस एफ बाई 2, बिकॉज ऑफ कॉस 60 वैल्यू कितना था? 1/2 इज इक्वल टू 3f/2। और ये आपका कौन सा कंपोनेंट हो गया? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम लोग वैल्यू पुटअप कर दें तो एफ √3/2। ओके,
और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। यदि हम लोग ओरिजिन सपोज कर लेते हो, ओके। अभी एफ एक्स और एफ वाई कितने पे है, 90 डिग्री पे है, तो इसका रिजल्टिंग हम लोग इजीली निकाल कर लेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू इन रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू है 3f/2 का स्क्वायर, एफ है रूट 3/2 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव 9f स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3f स्क्वायर अपॉन 4, और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12f स्क्वायर अपॉन 4, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3f स्क्वायर दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एफ रूट 3, और एफ की वैल्यू यहाँ पर है, इसको हम लोग पुटअप कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर रूट 3, ओके। तो आपका आंसर हो गया, आंसर। और डायरेक्शन की बात कर लें, एक अल्फा विद एंगल, एक अल्फा विद एंगल, एक अल्फा विद एंगल ऑफ एफ नेट विथ हॉरिजॉन्टल, देन tan alpha is equal to y component of force upon what, x component of force। y component of force कितना है, f रूट 3 अपॉन 2, एंड x component of force कितना है 3f/2, यह कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 3, ओके। इसको और आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा, और tan में इस एंगल के लिए 1/√3 वैल्यू होगा tan 30 डिग्री के लिए, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। तो आपका आंसर क्या मिला, नेट फोर्स एक्सप्रेस बाय प्लस कैपिटल क्यू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन का फिगर है, देयर आर अ स्क्वायर of side A and at the one of corner plus capital Q charge and another 3 corners plus small q charges are exist as shown in the figure. Then calculate magnitude and direction of net electrostatic force occurs at plus capital Q charge as written in question, okay। अच्छा, ये क्वेश्चन कोई जरूर नहीं कि यहाँ पर हमेशा प्लस क्यू ही, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है, क्लियर। तो सोल्यूशन का फिगर, सोल्यूशन फिगर हम लोग अलग शो करेंगे। स्क्वायर है आपका, इस कॉर्नर पे कितना है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल प्लस क्यू एंड ऑल्सो स्मॉल क्यू प्लस पॉइंट चार्ज है।
ओके, तो इस चार्ज पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना, तो इसको छोड़ के क्या बचा, यह बचा, यह बचा, यह बचा। अब हम देखेंगे कि यह इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे? इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। ओके, एंड दिस चार्ज इज आल्सो रिपेल इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। और यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे डायगोनल को, तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगा, a√2 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसके द्वारा यहाँ पे जो फोर्स लगा और इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा जो यहाँ फोर्स लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सपोज किया गया है, बिकॉज अब चार्ज का कॉम्बिनेशन सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। ओके, बट यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफर सपोज कर दिया गया, से एफ डैश। ओके, एफ डैश कह दिया, वेयर mod vector f is equal to f 1/4 pi epsilon 0 capital Q small q upon a का square for this force and this force. Okay, and mod vector f dash is equal to f dash, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, a√2 है, तो 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, यानी एफ डैश को हम लोग एफ के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f/2 मीन्स एफ डैश इन टर्म्स ऑफ एफ। ओके, अब इस प्लस कैपिटल Q चार्ज पर कितना फोर्स लगा, 3 फोर्स लगा, 3 फोर्स लगा है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है ऑलरेडी, और एक क्या है, एफ डैश नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। तो इसको हम लोग डिकम्पोज कर लेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। तो ए एंगल कितना है, 45, ए बी एंगल कितना होगा, 45। ओके, तो ए बी एंगल कितना होगा, 45। अब इसका एफ डैश का इधर मिलेगा क्या, एफ डैश कॉस 45, और डाउनवर्ड क्या मिलेगा, एफ डैश साइन 45। तो एक फिगर और हम लोग ड्रा कर लेते हैं, प्लस कैपिटल Q इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ ऑलरेडी पहले से है एफ, और इसका मिलेगा एफ डैश का प्लस एफ डैश कॉस 45। सिमिलरली डाउनवर्ड जो एफ फोर्स ऑलरेडी पहले से है, एफ प्लस एफ डैश का मिलेगा एफ डैश साइन 45। ओके, वैल्यू पुटअप यदि हम लोग करें तो इज इक्वल टू एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कितना है, f/2 इंटू 1/√2। ओके, सिमिलरली यहाँ पर एफ प्लस f/2 इंटू 1/√2। ओके, ये वैल्यू एफ कॉमन मिल जाएगा, 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। सिमिलरली यहाँ पर भी मिल जाएगा, एफ कॉमन मिल जाएगा, 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ओके, अब इसको हम लोग कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, वाई कंपोनेंट कहेंगे, यदि यहाँ पर हम लोग ओरिजिन सपोज कर लें तो, और इसको कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, एक्स कंपोनेंट कहेंगे इसको। ओके, और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे है, 90 डिग्री पे है, तो इसका रिजल्टेंट एफ नेट की वैल्यू हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू इन रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एफ 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2 the whole square, and fy component having same value, f 2√2 plus 1 upon 2√2 का whole square, total in root। ओके, दोनों सेम क्वांटिटी है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं और स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। एफ 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2 इन √2। ओके,
एफ नेट और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू F2 √2 प्लस 1 अपॉन 2, बट एफ की वैल्यू क्या है, कैपिटल की स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a का स्क्वायर 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2, तो आपका आंसर हो गया। बट अभी एंगल निकालना बाकी है, tan अल्फा, इफ अल्फा विद एंगल ऑफ एफ नेट विथ horizontal, then tan alpha is equal to y component of force upon x component of force, ओके, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए वैल्यू कितना जाएगा 1, और tan के लिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया। मीन्स magnitude of net electrostatic force expressed by plus capital Q charge is this, which is making an angle 45 degree with horizontal or vertical as shown in the figure। तो इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का फिगर है, देयर आर 2 point rest charges separated by, there are 2 point rest charges plus small q separated by 2a distance, and another charge plus capital Q which is exist at x distance from the perpendicular bisector of line joining small plus q charges as shown in the figure, okay, though plus capital Q charge exists at x distance from the perpendicular bisector of these two charges, so this distance a and this is also a। प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर हम लोग क्या डिटरमिन करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले फिगर हम लोग ड्रा कर देंगे। प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्स डिस्टेंस, और एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि इन दोनों चार्जों से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, और ये दोनों चार्ज जो है कितने डिस्टेंस पर है, 2a डिस्टेंस पर है। तो हाफ डिस्टेंस कितना पड़ेगा, a पड़ेगा एज इन क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। तो इससे प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ से मिला देंगे हम लोग, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम, और ए भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट, ओके। और ये आपका और डिस्टेंस हो गया। यदि इस एंगल को हम लोग थीटा सपोज करें तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब ये प्लस क्या, अब यहाँ पे क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इस प्लस कैपिटल के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो इसको छोड़ के यह चार्ज बचा, यह चार्ज बचा, यह इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कैसे, इन द सेंस ऑफ लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेज, ओके। दिस चार्ज आल्सो रिपेल टू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, कैसे, इन द सेंस ऑफ लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेज, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सपोज किया गया बिकॉज ऑफ चार्ज का कॉम्बिनेशन और डिस्टेंस क्या है, सेम, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेयर मॉड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू इतना है, ओके। अब इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर दो फोर्स है,
एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, बट हम लोग क्या नहीं करना, नेट नेट मीन्स वन डायरेक्शनल होना चाहिए, आइदर एक्स डायरेक्शन में आएगा या वाई डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन में आ सकता है। तो इन दोनों फोर्सर को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, कैसे, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में। यदि इस यहाँ से प्लस कैपिटल क्यू से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ओके, और एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ पर आपका है प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इस पॉइंट पर। अब इस फोर्स का इस साइड क्या मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा, एफ कॉस थीटा, और साइन कंपोनेंट अपोजिट साइड मिलेगा, एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस फोर्स का इस साइड क्या मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा, एफ कॉस थीटा, और साइन कंपोनेंट अगेन अपोजिट साइड मिलेगा, तो हो गया एफ साइन थीटा, ओके। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या सेम है और डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर जो एफ नेट फोर्स मिला, अपवर्ड डायरेक्शन मिला, एफ नेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मीन्स 2f साइन थीटा, वेयर एफ की वैल्यू दिस है। हम लोग वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्शन ऑलरेडी आ गया किधर, अपवर्ड, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गया। ओके, therefore f net is equal to 2f sin theta, where f की वैल्यू कितना है, कैपिटल की स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। एंड साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रो। जो ट्रायंगल यहाँ पर बना था, फिगर मिल चुका है, इसको अगेन बना दे रहा हूँ। ये थीटा था, ये भी थीटा था, ये 2a डिस्टेंस था। इसको समझाने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू यह कैसे आ गया, यहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू था, ओके, ये एक्स डिस्टेंस था, ए भी ए था और ए भी ए था, ठीक है। ए वैल्यू कितना था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ओके। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपॉन दिस हाइपोटेनस मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट, ओके। दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू कैपिटल की स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। दिस इज आंसर ऑफ का हो गया, और डायरेक्शन ऑलरेडी किधर है, अपवर्ड है, ओके। यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम force, find the maximum, find the value of x, find the value of x in the above problem such that f net becomes maximum। यह जो f net कैलकुलेट किया गया है, तो x के किस वैल्यू के लिए f नेट मैक्सिमम हो जाएगा, ओके, मैक्सिमम, ठीक। तो f नेट किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और सभी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके मीन्स df नेट बाई dx को हम लोग उठा के 0 कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो x की वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो अब प्रॉब्लम में पूछा गया है, तो इसका सलूशन देख लेते हैं। सिंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम df net
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स यदि एफ नेट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दें हम, तो जो एक्स की वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। देखो डी एफ नेट अपॉन डी एक्स ऑफ एफ नेट की वैल्यू इतना है 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके, कांस्टेंट टाइम को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एक्स ऑफ इसको, सॉरी एक्स यहाँ पे छूट रहा है, एक्स यहाँ पे छूट गया है, एक्स यहाँ पे छूट गया, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, तो इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लोग यदि फर्स्ट फंक्शन कह दें तो इसको सेकंड फंक्शन कह सकते हैं। तो सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन व्हाट, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ओके, देयरफॉर कैपिटल 2 कैपिटल की स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स दिस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स और डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना इंटू 3/2 साइड में आएगा, और एक पावर कम हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, फिर अलग से इसका हम लोग करेंगे तो कितना आएगा इंटू 2x आएगा। ओके, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और होल का स्क्वायर होगा। फार्मूला को अप्लाई किया गया। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डी एफ नेट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कैपिटल की स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस एक्स इंटू एक्स मीन्स 3x स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 अपॉन कितना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3, यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, बट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी एफ नेट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। पर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे वैल्यू, तो 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3। ओके, एक फैक्टर इधर जाके टोटल 0 हो जाएगा, यह भी फैक्टर 0 हो जाएगा। और ये फैक्टर इधर आके 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
कितना वैल्यू बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग दिस, ओके। और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर या और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2. This is answer. Means this is condition for maximum force experienced by plus capital Q charge. So इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लिए. क्वेश्चन क्या चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट रेस्ट चार्ज बाय नंबर ऑफ ग्रुपिंग चार्ज, टाइप ए में. अब टाइप्स बी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप B. Okay.